Hello, dear students. You are most welcome in आयुष एकेडमी जौनपुर। तो आज हम क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द नेकलेस। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू अटेंड द नेकलेस। दिस स्टोरी द नेकलेस has been created by Gaudima Passion. In this story, there are several characters. The first and important character is Matilda. Matilda is very important character of this lesson. The next character is Mr. Lazel. Mr. Lazel is the husband of Matilda and Matilda is the wife of Mr. Lazel. Now next character is Madame Forestier. Who is Madame Forestier? Madame Forestier is the close friend of Matilda. Between both had a close friendship from their childhood. Both were studying in the same school. That is why they were meeting together from time to time. But Matilda is one of the most important character, and all the activity of this character Matilda moves around her. Matilda is one of the ambitious ladies. She wanted to live her life, a luxurious life. She did not want to compromise about her life. But it was bad luck of Matilda that she was born in a poor family. Matilda का एक बैड लक था कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी. But she never compromised about such a things like that. Matilda's parents were very poor, and one thing more which is very important, they could not afford a handsome dowry so that they could find a wealthy husband for Matilda. As a result, Matilda was got married about Mr. Lazel. Mr. Lazel was mayor clerk in the office of education department. He was working in his office. It was his daily routine that he used to work there in the office and return his home in the evening. But here Matilda was living alone in her house. She was thinking about her bad luck as well as her poverty. Matilda अपने खराब भाग्य और गरीबी पर सोच रही होती है कि क्या उसका जीवन ऐसे ही बीतेगा. Matilda was thinking again and again for this, but she didn't find any solution. लेकिन उसे किसी प्रकार का सलूशन नहीं मिला. फिर क्या था? Once Matilda was sitting alone and she was thinking. In the evening time, when her husband returned, Matilda and her husband both were sitting on the dining table for taking their dinner. During the dinner time, the meal it was served, जो भोजन वहां परोसे गए थे, her husband was taking this very joyfully, but Matilda was not.
because Matilda wanted some delicious food and some other things like a wealthy family. But his life was a common one. Both the person's life or husband and wife's life was common one. It was not possible for a clerk so that he could survive his family well. On the other hand, we can say that दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मटिल्डा ने जो चाहा था उसके अकॉर्डिंग उसका जीवन नहीं चल रहा था, इसलिए मटिल्डा हमेशा सोचती रहती थी। फिर क्या था, मटिल्डा ने सोच लिया कि उसके भाग्य में ऐसा ही है और वह अपने भाग्य को कभी बदल नहीं सकती। बट वन डे द लक स्माइल्ड ऑन हर when her husband, Mr. Lazel, he was returning from his office, he had a big envelope in his hand. मटिल्डा के पति जब ऑफिस से वापस आ रहे थे, उनके हाथ में एक लिफाफा था एंड दैट envelope was invitation from ministers. Minister invited Mr. Lazel and his wife both in a ball dance. There was a party. It was organized at the house of minister. When Mr. Lazer told this to his wife, he said, "You are sitting alone in this house, so you have a good opportunity so that you can go there in the party of minister's house and enjoy." After hearing this, Matilda did not become happy because, according to the expectation of Matilda, she had no beautiful dresses. It was the problem of the sadness of, it was the question of the Matilda's problem. फिर क्या था? Matilda was thinking. After that, she said to her husband, "I will not go to attend the party." Her husband asked why. उसके पति ने पूछा क्यों? Matilda answered, "I have no beautiful dresses." Then her husband, Mr. Lazel, said, "If you have no beautiful dresses, you can buy." तुम इसे खरीद सकती हो. She said that for buying a beautiful dress, I need sufficient amount. When he asked how much, then Matilda told nearly 400 francs. She said that it needed 400 francs for buying the beautiful dress. मटिल्डा ने कहा कि 400 फ्रैंक की जरूरत होगी हमें अच्छा ड्रेस खरीदने के लिए. फिर क्या था? Her husband, Mr. Lazel, who saved one by one nearly 400 francs for buying the gun, so that he could go there in the forest with his friends for hunting. This handsome amount, it was saved one by one, but Mr. Lazel had given it to his wife Matilda for buying a beautiful dress. Matilda became very happy for a while. Matilda थोड़े समय के लिए प्रसन्न हुई और उसकी जो प्रसन्नता थी यह क्षणभंगुर थी, बहुत अधिक समय के लिए नहीं थी. फिर क्या था? Matilda went to the marketplace and she bought a beautiful dress for paying 400 francs. 400 francs इन्वेस्ट करके मटिल्डा ने एक सुंदर सा प्यारा सा ड्रेस खरीदा. द ड्रेस वॉज अकॉर्डिंग टू हर एक्सपेक्टेशन. जो मटिल्डा का ड्रेस था वो उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग था. सो सी बॉट दिस एंड सी बिकेम वेरी ग्लैड फॉर बाइंग सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस. ऐसे ड्रेस को खरीद करके वह बड़ी प्रसन्न थी. आफ्टर रिटर्निंग होम सी थॉट वंस अगेन, आई हैव बॉट ब्यूटीफुल ड्रेस बट I want some jewelry. But what a pity that was not in her house. Jewelry was not in her house. मटिल्डा ने ड्रेस तो खरीद लिया लेकिन वह ज्वेलरी चाहती थी और ज्वेलरी उसके घर में थी ही नहीं. फिर क्या था? मटिल्डा thought she will not go to the party. Once again she said to her husband,
मिस्टर लाइजर। फिर क्या था? मिस्टर लाइजर थॉट फॉर अ व्हाइल, एन आइडिया स्टक इन हिज माइंड। मिस्टर लाइजर के मस्तिष्क में एक विचार आया। मिस्टर लाइजर suggested to his wife Matilda, my dear Matilda, you can go to your friend Madame Forestier and you can borrow some jewelry. तो मिस्टर लाइजर ने कहा, माय डियर वाइफ, मेरी प्रिय पत्नी, ये तुम चाहो तो तुम्हारी एक सहेली है मैडम फॉरेस्टियर, यू कैन गो देयर एंड यू कैन बोरो सम ज्वेलरी। फिर क्या था? Matilda also became very glad because she did not think about this, that her problem could be solved like this. Then Matilda did not wait anymore. Later on, she went directly to Madame Forestier's home. फिर क्या था? मटिल्डा ने तनिक भी इंतजार नहीं किया, वह सीधे मैडम फॉरेस्टियर के घर जाती है। After going to Madame Forestier's home, Matilda borrowed jewelry. Madame Forestier showed her case of jewelry. There were different types of jewelry in her case. One by one, Matilda tried all. But what a pity, she did not like any one of them. मटिल्डा ने एक एक करके सारे के सारे आभूषण ज्वेलरी को उसने ट्राई किया, लेकिन उसने एक भी उसमें से पसंद नहीं किया, क्योंकि एक भी ज्वेलरी उसकी पसंद में नहीं आई। फिर क्या था? मटिल्डा वाज अ एम्बिशियस लेडी। मटिल्डा एक महत्वाकांक्षी महिला थी। सो शी वांटेड वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द यूनिक। उसे यूनिक चाहिए था, अच्छा चाहिए था, क्योंकि उसका जो टेम्पटेशन था, जो उसकी लालच थी, वह उसे और इंस्पायर कर रही थी अच्छा से अच्छा पाने की। When even Madame Forestier provided her the pearl necklace and some other necklace, gold necklace, but she did not like any one of them. Then at last, Madame Forestier brought a beautiful case. The cover of the case was made by the velvet. After opening the case, she saw there was a beautiful diamond necklace. जब उन्होंने केस को खोला तो उस केस में एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस था। मटिल्डा saw this and her eyes shone with brightness. She became very glad to see this because it was her beautiful match. Then Matilda tried this diamond necklace. मटिल्डा ने इस डायमंड नेकलेस को ट्राई किया, मतलब उसे पहना, पहनकर शीशे में देखा। When she saw, then she found that it was a beautiful match for her. फिर क्या था? मटिल्डा की यह अच्छी पसंद थी। मटिल्डा ने उसे पसंद कर लिया। पसंद करने के बाद मटिल्डा borrowed this to Madame Forestier. Madame Forestier had no problem at all about it to offer her. मैडम फॉरेस्टियर को कोई दिक्कत नहीं थी, मैडम फॉरेस्टियर ने उसे ऑफर कर दिया। फिर क्या था? मटिल्डा टुक दिस एंड रिटर्न हर होम ग्लैडली। मटिल्डा ने इसे लिया और प्रसन्नता के साथ अपने घर की ओर लौट आई। When it was the day of ball dance, Matilda and her husband both went to the minister's house to take part in the party. बाल डांस के दिन, इनविटेशन के दिन, मटिल्डा अपने पति के साथ मिनिस्टर के घर जाती है। आफ्टर गोइंग देयर, मटिल्डा danced well in the party. Each and everyone, they were there in the party. Each and everyone looking towards Matilda and her beautiful dress and toward the diamond necklace. सारे के सारे लोग जो वहाँ थे, सब के सब मटिल्डा की सुंदर ड्रेस को देख रहे हैं, मटिल्डा को देख रहे हैं। मटिल्डा was looking very beautiful and charming. The glow of Matilda also appeared a unique glow. मटिल्डा का जो ग्लो था वह अपने आप में बेमिसाल था। Means on the other hand, we can say that
there was not a single match to her, means not a single lady equalized to her. कोई भी ऐसी महिला नहीं थी जो मटिल्डा को इक्वलाइज करती हो, मीन्स मटिल्डा वाज वन ऑफ द बेस्ट इन दैट पार्टी. व्हेन द पार्टी फिनिश्ड, व्हेन द पार्टी वाज ओवर, जब पार्टी समाप्त हो गई, ईच एंड एवरीवन अप्रिशिएटिंग मटिल्डा, ईच एंड एवरीवन लुकिंग टुवर्ड्स मटिल्डा, ईच एंड एवरीवन एडमायरिंग मटिल्डा. हर एक व्यक्ति मटिल्डा की प्रशंसा कर रहा था, हर एक व्यक्ति मटिल्डा को ही देख रहा था, सबकी आंखें मटिल्डा पर टिकी हुई थी. मटिल्डा हैड प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, हर ड्रेस एंड ज्वेलरी. आफ्टर दैट मटिल्डा केम आउट लिटिल लैटर. थोड़े समय बाद मटिल्डा जब वहाँ से आ रही होती है, देन हर हस्बैंड मेट, उसका पति उससे मिला. ही सेड दैट माय डियर वाइफ, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू ब्रिंग द कैब. But Matilda did not follow her husband's suggestion. She went out from there and she was walking by on foot on the road. Her husband was also following her. After going some distance, after walking some distance, they found a cab. Both the wife and husband sat down in the cab and they returned their home in the late hours of the night. इसके बाद वो दोनों पति पत्नी कैब में बैठ जाते हैं और देर रात में वे अपने घर आते हैं. घर आने के बाद हर हस्बैंड सेड टू मटिल्डा दैट मटिल्डा, आई हैव टू गो टू ऑफिस, प्लीज आई वांट टू स्लीप फॉर अ व्हाइल. कृपया मुझे सोने दो, मैं कुछ समय सोना चाहता हूँ, लेट मी स्लीप प्लीज. फिर क्या था, मटिल्डा ने कहा ओके यू कैन गो, बट व्हाट अ पिटी. मटिल्डा वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. शी was watching herself from head to foot, but what a pity, when she saw her neck, it was empty. Means the necklace was lost. Necklace खो गया था. Now there was no necklace in her neck. Matilda became very sad. Later on, in hustle and bustle, she called her husband and she said to him that where is the necklace, please find out, please help me to search it. Then both the husband and her wife searched the necklace each and everywhere, but they didn't find. After that they wore their clothes. इसके बाद उन्होंने अपने अपने कपड़े पहने. कपड़े पहनने के बाद भी once again they checked their pockets and some other garment, but they didn't find the necklace anywhere. उन्हें नेकलेस कहीं नहीं मिला. फिर क्या था, देन हर हस्बैंड वेंट टू द रोड फॉर सर्चिंग इट. उनका पति सड़क पर जाता है और नेकलेस को ढूंढता है, नेकलेस को ढूंढता है, बट ही डिडंट फाइंड सक्सेस. उसे सफलता नहीं मिली. आफ्टर दैट ही कंसल्टेड टू द कैब एंड सम अदर कैब ड्राइवर्स. ही आल्सो वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड देयर ही इन्फॉर्म अबाउट द लॉस ऑफ द नेकलेस. ही आल्सो पुट द प्राइस that one who will bring the necklace, but all the efforts of her husband was useless. It was not beneficial to them. उसके सारे के सारे प्रयास धरे के धरे रह गए. अर्थात मटिल्डा के पति को तथा मटिल्डा को कोई सफलता नहीं मिली. Now both the wife and husband were worried beyond the proper limit. They thought that how will they return this diamond necklace. उन्होंने सोचा कि अब ये डायमंड नेकलेस को किस प्रकार से वापस किया जाए, वे डायमंड नेकलेस को कैसे वापस करें. दैट वाज हर प्रॉब्लम. देन मटिल्डा प्रिटेंडेड टू मैडम फॉरेस्टियर, योर नेकलेस ब्रोकन, सो आई विल रिटर्न यू इन अ वीक बिकॉज आई हैव गिवन इट टू मेंड. मैंने इसे मेंड कराने के लिए दिया है, एक सप्ताह बाद आपको नेकलेस मिल जाएगा. बोथ द वाइफ एंड हस्बैंड कैलकुलेटेड अबाउट द प्राइस ऑफ द नेकलेस. बोथ वेंट टू द ज्वेलरी शॉप. दोनों ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं. आफ्टर गोइंग देयर दे आस्क्ड द प्राइस ऑफ द सेम नेकलेस. उन्होंने सेम नेकलेस की प्राइस पूछी. सेम नेकलेस की उन्होंने प्राइस पूछा. द शॉपकीपर who told that the price of the
necklace will be 40,000 francs, not 40,000 francs. दुकानदार ने कहा कि जिस नेकलेस को आप पसंद की हैं, जिसे आप दिखा रही हैं, जो आप चाहती हैं, इसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स है। फिर क्या था, बोथ वर बिकेम वेरी अनहैप्पी, उनकी दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोनों बेचारे वहां से वापस आते हैं। देन मिस्टर लाइजल हु सोल्ड हिज पैटर्नल प्रॉपर्टी नियरली 22,000 फ्रैंक्स, 22,000 फ्रैंक्स, उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी पैटर्नल थी 22,000 फ्रैंक्स में बेच दी। ही आल्सो लेंड सम मनी फ्रॉम सेवरल फ्रेंड्स, इसके बाद उन्होंने अपने कई मित्रों से, FRIENDS, कई मित्रों से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए। एंड ही डिसमिस्ड द मेड, MAID, उन्होंने मेड को डिसमिस कर दिया। दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल हाउस, उन्होंने अपने सुंदर घर को छोड़ दिया। आफ्टर दैट दे हायर्ड अ रूम, इट वॉज लाइक अ बेसमेंट एंड द रूम वॉज नॉट ब्यूटीफुल। On the other hand, on the whole, it can be said that their life was like a labor. फिर क्या था, दोनों का जीवन एक लेबर जैसे बीतने लगा। जहाँ मटिल्डा नौकरानी के ऊपर डिपेंड थी, नौकरानी उन्हें सर्व करती थी, उनका पति ऑफिस से आता था तो चुपचाप बैठी होती थी, घर के काम करने नहीं होते थे। मटिल्डा का जीवन जो बहुत अच्छा चल रहा था, नाउ हिज डाउनफॉल, हर डाउनफॉल स्टार्टेड, अब मटिल्डा का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि मटिल्डा का जीवन अब वैसा नहीं रहा। फिर क्या था, दे कैलकुलेटेड nearly 40,000 francs. After that they went to the shopkeeper and they bought the same diamond necklace in 38,000. क्या था, 38,000 में उन्होंने सेम नेकलेस खरीदा। एंड आफ्टर बाइंग सच अ नेकलेस दे गेव इट टू मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर को उन्होंने नेकलेस दे दिया। उनके रहन सहन सब बदल गए और उनकी जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब उनकी लाइफ स्टाइल वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। देन दे स्टार्टेड टू मेक अप दिस हैंडसम अमाउंट, बट दिस वाज नॉट वेरी इजी टू फुलफिल द हैंडसम अमाउंट लाइक 38,000 फ्रैंक्स। इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठा करना उनके लिए संभव नहीं था कि वे इसे इकट्ठा करके अपना जीवन ढंग से जिए। मिस्टर लाइजल अटेंडेड द पार्ट टाइम जॉब बिसाइड हिज ऑफिस, मिस्टर लाइजल ने ऑफिस के सिवाय पार्ट टाइम जॉब कर लिया। एंड मटिल्डा आल्सो अटेंडेड हर ईच एंड एवरी पीस ऑफ वर्क ऑफ हर हाउस, मटिल्डा अपने घर के सारे एक एक कार्य को स्वयं करने लगी। फिर क्या था, मटिल्डा पोछा लगाती, झाड़ू लगाती। शी यूज्ड टू गो फॉर बाइंग द वेजिटेबल, ईच एंड एवरी शॉप शी हैड टू डू द बार्गेनिंग सो दैट शी कुड सेव अ सिंगल पेनी। एक एक पेनी वह बचा करके वह सोचती थी कि मैं कुछ पैसे बचा लूं, इसलिए वह सब्जी ऐसे खरीदती थी मानो वह बहुत गरीब महिला हो। उन्हें बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, दुकान दुकान जाना पड़ता था, लोगों के मुंह लगना पड़ता था। फिर इस प्रकार मटिल्डा का जीवन अच्छे से खराब जीवन में तब्दील हो गया। फिर क्या था, मटिल्डा एंड हर हस्बैंड बोथ वर्कड हार्ड नियरली 10 ईयर्स, मटिल्डा और उसके पति ने लगभग 10 सालों तक कठिन परिश्रम किया। आफ्टर वर्किंग हार्ड नियरली 10 ईयर्स दे फुलफिल्ड देयर एम्बिशन, उनका जो कर्ज का जो एम्बिशन था, जो कर्ज का जो टारगेट था, 10 सालों में पूरा हुआ। बट ड्यूरिंग दीज 10 ईयर्स देयर लाइफ स्टाइल हैड चेंज्ड अ लॉट, इनकी जो लाइफ स्टाइल थी, जो जीवन जीने की शैली थी, वह बहुत परिवर्तित हो गई और उनका जीवन बद से बदतर हो गया। नाउ मटिल्डा शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लेडी, नाउ शी वाज लुकिंग लाइक अ पुअर वीमेन। अब मटिल्डा का जो जीवन बहुत सुंदर था, आकर्षक था, अब उनका जीवन ऐसे नहीं रहा। अब वह एक गरीब महिला दिखती थी, ऐसे लगती थी मानो वह मजदूर हो। फिर क्या था, आफ्टर 10 ईयर्स
One day, Matilda was going somewhere for her work. When she was returning, then she met with Madame Forestier. Madame Forestier and Matilda both were face to face. Then there was a short discussion happened between them. In the beginning, Madame Forestier could not recognize Matilda क्योंकि मटिल्डा को मैडम फॉरेस्टियर ने नहीं पहचाना। जैसे ही मटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर से टकराती हैं, टकराने के ठीक बाद मैडम फॉरेस्टियर ने कहा कि तुम्हें दिखता नहीं, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम जैसी नौकरानी मुझसे टक्कर करने की। फिर क्या था, मटिल्डा बिकेम वेरी सैड एंड शी सेड दैट माय डियर फ्रेंड फॉरेस्टियर, आई एम योर क्लोज फ्रेंड मटिल्डा, व्हाई आर यू सेइंग दिस, यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग मी, आप मुझे पहचान नहीं रही हो, मैं आपकी मित्र ही तो हूँ। फिर क्या था, मैडम फॉरेस्टियर बिकेम वेरी शॉक्ड टू सी हर फ्रेंड इन सच अ कंडीशन। ऐसी स्थिति में देख करके मैडम फॉरेस्टियर बहुत चौंक जाती हैं, कहती हैं माय डियर मटिल्डा, हाउ इज दिस हैपेंड, मेरी प्रिय मटिल्डा ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारे चेहरे तो बिल्कुल बदल गए, तुम्हारी रूपरेखा, तुम्हारा शरीर सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा क्यों, हाउ इज दिस हैपेंड, ऐसा कैसे हुआ। फिर क्या था, मटिल्डा टोल्ड द स्टोरी ऑफ द डायमंड नेकलेस। मटिल्डा ने बड़े दुखी मन से उस डायमंड नेकलेस की कहानी उन्हें बताती हैं और कहती हैं माय डियर फ्रेंड, दैट डायमंड नेकलेस विच आई बोरोड टू यू, इट वाज लास्ट इन द पार्टी, सो वी बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैड टू वर्क हार्ड टू कलेक्ट 40,000 francs. Then I had returned your diamond necklace. For this reason, this is the reason so that we became very poor and we have to manage such a handsome amount like 40,000. That is why my condition is like this. इसलिए मेरी कंडीशन ऐसी हो गई, मेरी कंडीशन की, मेरी इस बदहाली की जिम्मेदार वो डायमंड नेकलेस है जो मैंने तुमसे लिया था। After seeing this, Madame Forestier laughed. After hearing this, Madame Forestier laughed. यह सुनकर मैडम फॉरेस्टियर हंसी and she said that, my dear friend Matilda, you must say about this incident to me. If you have shared this incident with me, then you have not to suffer a lot. But you didn't tell me. Listen to me. That necklace which I had given to you, it was not a real, it was duplicate one. जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वह वास्तविक नहीं था बल्कि डुप्लीकेट था। Actually the real price of that duplicate necklace was only 400 francs. But you have to pay 40,000 francs. What a pity. कितनी दुख की बात है कि तुम्हें इतने पैसे चुकाने पड़े। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। बट अ क्वेश्चन arises here in front of us. I want to know that what is the message here for us as well as the readers who will attend this story. यह कहानी हमें क्या मैसेज देती है, इस कहानी का मैसेज क्या है, इस कहानी का सार क्या है, यह कहानी हमारे सिलेबस में क्यों लाई गई, तमाम प्रश्न हमारे सामने उठते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो साथियों, डियर स्टूडेंट्स, मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी टेम्पटेशन नहीं करना चाहिए, मतलब लालच नहीं करना चाहिए, और हमें उतने ही पांव फैलाने चाहिए जितनी कि हमारी चादर हो। किसी ने कहा है, अंग्रेजी में कहा है, कहावत है कि कट योर क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू योर कोट, तेते पांव पसारिए जेती लंबी शौर। हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने अच्छे खासे सुखी जीवन को दुखी जीवन में परिवर्तित कर देंगे। ऐसा होने में तनिक भी देर नहीं लगेगा। वन थिंग मोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए और सोच हमारी उच्च होनी चाहिए। सोचना, चिंतन करना
हमारे बस में है। अपने जीवन को बेटर बनाना ये हमारे बस में है। अगर हम नियमित रूप से अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ करते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी। इसलिए हमें मटिल्डा जैसे आचरण नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा अपने पद के हिसाब से, कद के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, अपनी वैल्यू के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए। दैट्स ऑल।